بنگالی سے ان کا تعلق ہے، میں ان سے گزارش کروں گا ہمارے بزرگ ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں پریس کانفرنس کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب مرزا شفیق جلال صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے معزز حضرات اور صافی برادری بنگالی کے نوجوان اور قربانی جانے والے لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ساتھیو، عرض یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں۔ مسلم کانفرنس جو ہے کشمیر میں، اس کی داغ بیل جو ہے سن 1932 میں پڑی تھی، اور آپ جا کے میرے موٹر سائیکل کا نمبر بھی دیکھا، وہ بھی میں نے 1932 لکھا ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، اچھائی کی طرف بھی جاتا ہے۔ آج بھی برادری مرزا شفیق جلال اور ظفر صاحب کی نہایتی عزت کرتی ہے، اور میں نے جب کرنل صاحب کے ساتھ ہم نے پوری پارٹی مسلم کانفرنس سے علیحدہ ہو کے ان میں شرکت کی، اس وقت ہمارے ساتھ یہ مرزا سلیم صاحب ہیں، مرزا ظفر صاحب ہیں، مظہر صاحب ہیں، اور یہ مرزا آفتاب صاحب اور بنگالی کے نہایت ہی معزز ترین لوگوں نے شرکت کی۔ آج میں اس برادری کی اجازت سے، بنگالی کے عوام کی اجازت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس جماعت کو چھوڑ کر ہم نے اپنی مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں شمولیت کی تھی، آج حالات کے تحت یا پچھتاوا کہہ لیں، آج ہم ان سب لوگوں کی اجازت سے مسلم کانفرنس میں دوبارہ شمولیت کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسانوں کے بغیر آدمی کیا پتھر بھی نہیں زندہ رہ سکتا دنیا میں۔ یہ سب لوگ ہیں، یہ شفیق صاحب کی بھی شان بنانے والے ہیں۔ میں نے ضلع ممبر ضلع کونسل کا الیکشن لڑا، الحمدللہ بنگالی کے لوگوں نے مجھے 1450 ووٹ دے کر یہاں سے نکالا۔ آج بھی مجھے پورا یقین ہے کہ حالات اور واقعات کے تناظر میں آج کا فیصلہ، آج کی یہ شام جو برادری کا ہمارا پہلا قافلہ یہاں آیا تھا، اس میں میجر قدرت اللہ صاحب تھے، میرے والد صاحب تھے فیض محمد مرحوم صاحب، مرزا عبداللہ صاحب تھے، لیفٹیننٹ راج محمد صاحب تھے، لیفٹیننٹ غلام محمد صاحب تھے، لیفٹیننٹ سیف اللہ صاحب تھے۔ یہ سارے لوگوں کا ایک گلدستہ تھا، اور وہ ایک ہی سمت کو چلتے رہے ہمیشہ برادری کے حالات کو دیکھ کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، جس نے آپ لوگ تشریف لا کر ہمیں یہ آپ نے موقع دیا، اور ساتھ خوشی بھی محسوس ہوئی کہ اس بہانے سے کم از کم باہر سے آئے ہوئے حضرات مل گئے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری یہ خواہش ہوگی، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، شفیق صاحب کو اگر ووٹ نہیں دیا تو کسی ایک میٹنگ میں، کسی ایک جلسے میں نے ان کا ذکر کیا ہو تو آج میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا خیال ہے میری زبان سے کبھی نہیں کوئی بات۔ آج میں کرنل وقار صاحب کی کوئی بات نہیں سکتا، کیونکہ 3-4 سال چلے ہیں یہاں تک میرا تعلق ہے۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے
مرزا ظفر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں لیکن حالات کی مجبوریوں کے تحت آئندہ ہم کرنل وقار صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے. پھر میں اکیلا کوئی چیز نہیں ہوں. نوجوان اکٹھے ہوئے 15 20 30. انہوں نے کہا پھر آپ کا ارادہ کیا؟ میں نے کہا ہم اس علاقے کے آدمی کو برادریزم بھی ہم میں نہیں ہے. اس علاقے کا کوئی آدمی ہوگا جو ہماری تھانے، ہم غریب لوگ ہیں، تھانے تک رسائی، تحصیل تک رسائی. اور آج کی اس شمولیت کے موقع پر میں شفیق صاحب سے کہتا ہوں بڑی امیدوں سے لوگوں نے دوبارہ آپ کا رخ کیا ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ روز چلوں، میری صحت ابھی 87 سال عمر ہے، 50 سال تک میں کشتی لڑ رہا ہوں فوج میں رہ کر. ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. پچھلے ہمارے جو ساتھی شہید ہوئے، اس قوم نے ثابت قدم رہ کر، میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں گجرات تک آپ لوگوں کی سخت کی ہے لوگوں نے کہ ان لوگوں میں اتحاد ہے. اور میں کہتا ہوں اتحاد جیسی کوئی دولت نہیں ہے، آئندہ بھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد سے رہیں. اور آج کی شام جو ہے یہ جناب شفیق صاحب کے نام کرتے ہیں اور خلوص سے ان کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپنے لیکچر میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن کرنل صاحب کے الیکشن میں نے بھرپور حصہ دیا اور ہر آدمی کی محنت کیا اور ان لوگوں کا بھلا ہو. یہ چلو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن وہ ہماری امیدیں پوری نہیں ہو سکی. آج میں بڑی امیدوں کے ساتھ شفیق صاحب کے ساتھ ہم نے مسلم لیگ لون چھوڑ کر شمولیت کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ شفیق صاحب یہاں اس حلقے کا پنگالی یا کوٹ جامل چھوڑیں، کسی بھی غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہو. آج اللہ کا فضل ہے آپ کے کم از کم 15 20 وکیل ہیں کہ چاہے اسے ضمانت کرانی یا کسی تھانے کو جس کے ساتھ زیادتی ہو، یہ ضرور آپ ڈیوٹی ادا کریں، اپنے فرائض انجام دیں آپ کو. اور انشاءاللہ ان لوگوں کی طرف سے بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. باقی آپ کو میں سمجھتا ہوں جتنی رقم ملے گی یا کوئی اس سے اوپر آپ سے کام نہیں مانگیں گے. تو دوبارہ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ تھے ہمارے بزرگ تاریخ کے جرموں سے ہم نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے آگاہ کیا. میرے دوستو، جب بزرگ کی صفت کا تعین کر لیتے ہیں، کسی راستے پہ پہنچنے کا مقصد اور ماٹو بتا دیتے ہیں، تو یوتھ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس راستے کی طرف گامزن ہو. بزرگوں نے بڑی اچھی باتیں کی، ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں. اب میں اوورسیز رہنما مرزا محمد سلیم جرال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. مرزا سلیم جرال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شفیق صاحب، ڈاکٹر عرفان صاحب اور ان کے ساتھ تمام جو دوست آئے ہیں ان کو ہم پنگالی کے مقام پہ ویلکم کہتے ہیں. ویسے تو باتیں کرنا کافی ساری کر دی ہیں، اب اس کو میں بھی دوبارہ وہی بات کروں کہ ہم نے نون لیگ چھوڑ دی ہے کیونکہ انہوں نے تو بتا دیا، لیکن ہم بھی، میری بھی وہی بات ہے کہ ہم انہی کے ساتھ ہم نون لیگ میں شامل ہوئے تھے
और अल्हम्दुलिल्लाह वही ग्रुप आज कैप्टन साहब की सरबराही में हमने नून लीग को खुदा हाफिज कह दिया और हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का जैसे कैप्टन साहब ने ऐलान किया है तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। वैसे तो मुस्लिम लीग नून का नाम आता रहेगा क्योंकि 9 साल उनके साथ गुजारे हैं, तो यकीन माने कि बातें तो इंशाल्लाह अब टाइम शुरू हो गया है, कैंपेन का टाइम समझ लें आज से शफीक साहब इलेक्शन की मुहिम समझ लें कि कैंपेन आपकी आज यहाँ पंगाली से स्टार्ट शुरू हो गई है। तो तकरीरें भी होती रहेंगी, बातें भी होती रहेंगी। यकीन माने कि आज 9 साल के बाद दोबारा हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं और ये इन चेहरों में जो मुझे खुशी नज़र आ रही है, यकीन माने मैं भी बैठा हुआ यहाँ इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज वाकई हम अपनों में हैं और अपने अपने ही होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बातें अगली नेक्स्ट मीटिंगों में और नेक्स्ट प्रोग्राम में होती रहेंगी। तो दोबारा सबका शुक्रिया अदा करते हैं और इसमें मैं अपने भाई मेरे जफ़र भाई हैं, दोस्तों ने सारा तावन किया है, लेकिन ये एक हफ़्ता यकीन माने मैं तो अपनी छुट्टी पे आया हुआ था, अपने किसी और काम पे आया हुआ था, लेकिन जफ़र भाई के साथ मिलके इन्होंने जितनी काविश की है और इसमें मैंने भी थोड़ा सा हिस्सा डाला है, तो उम्मीद है सारे दोस्त इसको कबूल करेंगे। जफ़र को मैं 2 मिनट करा लूँ। अब यकीन मानिए मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं जिस आदमी को अपने काफले में देखना चाहता था, जिसके पास साथ में अपने समाजी मामलात को डिस्कस करता था, काफी मशवरा जात हुआ करते थे, मैं आज इंतहाई खुश हूँ कि आज वो मेरे काफले का हिस्सा है। मेरी मुराद हाजी जफर साहब बनमला वाले हैं, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब, डॉक्टर इरफान साहब और इनके साथ आए हुए मेहमान ग्रामी, सहाफ़ी हज़रात, पंडाल में बैठे हुए बुज़ुर्ग, नौजवान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इधर बैठने का जो असल मकसद है वो तो कैप्टन साहब ने बता दिया है कि हमने नून लीग को खैरबाद कह के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये बात तो सबसे वाज़ेह बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आज से हम दोबारा MC हमारी जो रियासती जमात है, हम अपना घर भूल गए थे। बेस मजबूत हो तो आगे आदमी चलता है। मेरी तमाम दोस्तों बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि हम रियासती जमात को जितनी तक़वियत देंगे हम इतने ही मजबूत होंगे। इसके लिए काम करें। अल्लाह ताला जितना मेहनत करेंगे उसका फल देगा। ये अभी छोटा सा काफिला ना देखें, इंशाअल्लाह इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम शुरू कर रहे हैं। आस्ता आस्ता देखते हैं अल्लाह ताला इसमें कितनी बरकत डालते हैं और उसका अल्लाह ताला हमें उसका अजर भी देगा और हमारा रिजल्ट भी उसका देखेगा। तो आज 2-3 फौतगी की वजह से ये शॉर्ट कॉन्फ्रेंस की है, प्रोग्राम कुछ और था। बहरहाल इसको मुख्तसर करते हुए आइंदा जैसे सलीम भाई ने बताया कि तकरीरें वगैरह आगे टाइम मिलता रहेगा, होती रहेंगी। तो सब भाइयों का जो इधर जिन्होंने शिरकत की, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा सब के लिए इल्तिजा है कि इसको मेहनत से भी सब ने चलाना है और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, उसको कोट किया हाजी जफर साहब ने, काम काम और काम। मेरे दोस्तों,
जिस काम की शुरुआत आज यहाँ से हुई है उसे पाए तकलीफ तक हम सब ने मिल के इंजाम देना है। आप लोगों ने भरपूर मेहनत करनी है। हमारा मकसद टॉप पे पहुंचना है, उसके लिए काम और काम की थ्योरी को आपने याद रखना है। अब मैं उस नौजवान को बुलाने जा रहा हूँ जिसने इस सारे पंडाल को संजाने के लिए अपना दिन रात एक किया और सबको मोटिवेट करके मिर्जा शफीक जलाल साहब के काफले में शामिल किया। मेरी मुराद परवेज जलाल साहब हैं। परवेज बूश के नाम से हम सब इन्हें जानते हैं। अब परवेज बात करूंगा कि वो ये अब परवेज बना दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला मैं मिर्जा शफीक साहब, डॉक्टर इरफान साहब, हाजी सफर साहब, मिर्जा सलीम साहब का और तमाम दोस्तों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना जिन्हें अपना कीमती वक्त कढ़िया और इतने तशरीफ लियांदी। और साढ़े कुछ पिछले अरसे तो ताफजात हैं अपने मकामी कैंਡੀਡੇਟ नाल, करनल वकार नाल। उन्होंने की वजह नाल असां नून लीग नूं छोड़ के ते मिर्जा साहब के काफले और MC च शमूलियत अख्तियार की। और मेरे ख्याल के मुताबिक असीं कुछ राय रास्त तो थोड़ा सा हट गए हाँ। और कुछ मेरे स्पैशल दोस्त ने जिन्हों की काविश नाल जनाब असीं वापस अपने रस्ते से आए हैं। मैं उन्हों का स्पैशल शुक्रिया अदा करना। सजाद साहब, पीर ज़ियारमान साहब, हाजी साहब और मिर्जा सलीम साहब और कैप्टन फाजल साहब, इन्हों की बड़ी काविश है और बड़ी मेहनत है जनाब कि असीं दोबारा अपने रस्ते से आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून छोड़ने की वजह बता सकते हैं? मुस्लिम लीग नून जिस तरह कि मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया कि सानूं बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं, बहुत सारी उम्मीदां हैं इस जमात तों और अपने कैंਡੀਡੇਟ तों, वो जिहड़ियां साडीआं नहीं पूरियां होईयां। उस वजह नाल जनाब ठीक है जनाब। फिर मैं दोबारा तमाम अपने भरावां दा, दोस्तां दा, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं उस नौजवान को बुलाने जा रहा हूँ जो सियासी तौर पे काफ़ी रखते हैं। बंगाली में उनका बड़ा अच्छा रैपो है। मैं डॉक्टर कासिम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर कासिम सबसे पहले मैं बाहर से आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की रौनक को दुबारा किया। अजीज दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, आज हमारा मकसद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, शमूलियत का ऐलान करना था। गिले शिकवे तो बहुत होते हैं क्योंकि आज अगर हमने नून लीग को छोड़कर, क्योंकि नून लीग में हम शामिल हुए अपने कायदे मोहतरम मिर्जा जफर हुसैन एडवोकेट के कहने पर, हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहकर नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया और दिन रात मेहनत की। और मुस्लिम नून ग्रुप की जो सबसे पहली मीटिंग थी वो हाजी जफर साहब के घर बरमला में हुई। उसके बाद दूसरी मीटिंग हमारे गांव बंगाली कला में हुई, तो मुझे उसमें तकरीर का मौका दिया गया। तो अजीज दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, बंगाली की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है जो शहीदों की सरजमीन है, जो मुजाहिदों की सरजमीन है,
बंगाली से जब कोई भी आवाज उठती है, तो जब मुझे तकरीर का मौका दिया गया, हालांकि मैं तकरीर करने के हक में नहीं था, ना ही मुझे सच्ची बात है कि ये पता था कि किस मौजू पे तकरीर करनी है, लेकिन जब हमारे कायदे मोहतरम मिर्जा जफर इकबाल साहब ने मुझे हुक्म दिया, क्योंकि हम उनके जानसार सिपाही थे, जो जानसार सिपाही होता है, जान एक बड़ी कीमती चीज है। आपको पता है कि हमारे बंगाली के 4 नौजवान, 3 नौजवान, एक नौजवान का ताल्लुक कोट जामल से था, हमारे बहुत से नौजवान माजूर भी हो गए। हमने किसकी खातिर कुर्बानियां दी? जमात की खातिर कुर्बानियां दी, अपने कायदीन की खातिर कुर्बानियां दी, इस इलाके की खातिर कुर्बानियां दी, कौम की खातिर कुर्बानियां दी। खुदा की कसम मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि हमारी जलाल बरादरी ये ऐसी अजीम बरादरी है कि हम जिस साइड पे भी चलते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, खुलूस नीयत के साथ चलते हैं, हम जान की कुर्बानियां भी पेश कर देते हैं। शबीर शहीद मेरा सच्चा कज़न था, खुदा की कसम वो मुझे कोई पूछे कि मेरे दिल के साथ आज 24 साल का अरसा गुजर गया है, किसी वक्त भी शबीर शहीद मेरे जहन से, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से नहीं निकलता। ये हमें कोई पूछे कि हमें कितनी तकलीफ होती है। कर्नल वकार अहमद नूर साहब को मैंने ये बिशारत सुनाई थी कि कर्नल साहब मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि जिस जगह आपकी पहली मीटिंग हो रही है, ये शहीदों की, जानसारों की, मुजाहिदों की सरजमीन है। ये लोग जो आवाज बुलंद करते हैं उसमें पैरा देते हैं, वो अल्लाह के फजल और करम से ऐसे छाती है, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। शफीक साहब ने आपको भी ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि ये देख ले, हमने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये के बाद दिखरे 4 फौतगियां होने की वजह से हम कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को सही तश्कील नहीं दे सके। उसके बावजूद भी आप देख लें कि इतना ही जलसा भी नहीं होता जितनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना शक्ल इख्तियार कर दी है। तो दोस्तों बात यह है कि हमने आज दिन तक कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता, हमारा माजी बेदाग है। हम जिसके साथ भी चलते हैं हम भाइयों की तरह चलते हैं। कर्नल वकार अहमद साहब को हमने अपना लीडर तस्लीम किया, उनके जलसों में, उनके जुलूसों में, उनकी मीटिंगों में हमने जो भरपूर तरीके से हम हिस्सा लेते थे। खुदा की कसम हम 4-4 बजे रात को सोते थे, रात नहीं कह रहे बल्कि सुबह कह रहे, ठीक है। लेकिन जब हमारी काम की बारी आती है तो हमें नजरअंदाज किया जाता है, हमारे साथ 70 माँ जैसा शुरू किया जाता है। कर्नल साहब ने भी हमारे साथ जो वादे किए वो वादे वफा नहीं किए, जो करना चाहिए था खुदा की कसम वो नहीं किया। अगर करते तो मैं दावे से कहता हूँ कि आज भी कर्नल साहब के जानसार सिपाहियों थे। ये तो सियासत का रुख है, कभी कोई किसी के साथ चला जाता है, कभी कोई किसी के साथ चला जाता है। मैं आज भी उनकी मुखालफत का बात नहीं कर रहा, ठीक है उन्होंने हल्के के काम किए होंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों में वो पूरा नहीं उतर सके। फिर हम लोगों को एक और टाइम दिया, हमने बोला कि हमारा जो काफिला है ये हमारे सियासी रहनुमा रिटायर कौंसल फादर साहब की क़यादत में चला था और इन्हीं की क़यादत में चलता रहेगा जब तक इनकी जिंदगी है। हम इनकी बात पे लबैक कहते रहेंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इस बंगाली की कुर्बानियां देखें और इस बंगाली के काम देखें जो इन सियासतदानों ने किए हैं। हमेशा जो भी आया जिनकी खातिर हमने कुर्बानियां दी सब ने हमें नजरअंदाज किया। और याद रखें जो किसी की कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकता, जो अपने मौसम को याद नहीं रखता, वो इसको नाबूद हो जाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इधर किसी का भी कोई तकरीर करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, तो बरादरीज़म की जहाँ तक बात चलती है, खुदा की कसम ये जलाल बरादरी वाहिद जमात है, वाहिद ऐसी बरादरी है जिन्होंने कभी बरादरीज़म नहीं किया।
हम साबित करके देते हैं कि हमारे साथ हमेशा नाइंसाफियां हुई है, ज्यादतियां हुई है, लेकिन हमने कभी भी बिरादरीज़्म का नारा नहीं लगाया और आज भी हम लानत भेजते हैं। हमारे मिर्जा जफर हुसैन एडवोकेट ने ये कहा था कि आज से मैं बिरादरीज़्म को हमेशा के लिए दफन कर रहा हूँ। हमने उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हम इस चीज से नफरत करते हैं, लेकिन हमने तमाम बिरादरियों को, जट बिरादरी को भी हमने वोट दिए, चौधरी बिरादरान को भी हमने वोट दिए, लेकिन हमारे साथ हमेशा ज्यादतियां ही होती आई हैं। तो अभी मैं आज भी ये ऐलान करता हूँ कि हमारे अंदर जो सलीम साहब ने ये बात कही कि अपने अपने होते हैं, इसमें ये बात नहीं कि हमको बिरादरीज़्म का नारा लगा रहे हैं। अपनों से मुराद है जो हल्के के लोग होते हैं। मैं आज भी आपको ये कहूंगा कि दोस्तों, अपने हल्के के किसी बंदे का इंतखाब किया करें। जो बाहर के लोग हैं उन्हें हल्के से, हमारे हल्के से कोई दिलचस्पी नहीं। चलो कर्नल वकार अहमद नूर साहब थे तो वो हल्के से उनका तल्लुक था, तो हल्के से तल्लुक होने की वजह से हमारी मीटिंग पे तो वो पूरे नहीं उतर सके, लेकिन शायद उन्होंने हल्के में कोई लोगों की उम्मीदों पर पूरे भी उतरे होंगे। तो अभी मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। अब मैं जवेद सादिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शुक्रिया अदा करें। जवेद सादिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं जो मेहमानान ग्रामी मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब सदर आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं अपने वजूद साथियों का मुहब्बे वतन और मैं क्या क्या अल्फाज करूँ इस्तेमाल करूँ इनके लिए, कोई अल्फाज बहुत कम पड़ जाएंगे इनकी अगर मैं तारीफ शुरू करूँ। जिन्होंने इत्तेफाक मोहब्बत का दर्स दिया, जिनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर इरफान साहब का आता है। उन्हीं की कोशिशों से ये सारा जो भी आज अमल आपके सामने नजर आ रहा है, उन्हीं की काशियों से। और शफीक, उसके बाद सलीम जलाल साहब, ये बैरून मुल्क से आए, इन्होंने मेहनत की और आज आपको ये एक गुलदस्ता, एक खूबसूरत गुलदस्ता नजर आ रहा है। मैं जितना भी इनका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। दोस्तों, जो खुसूसन जनाब बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आपको एक बहुत बड़ा एजाज मिला है। यकीन जानिए, 1932 से जब से ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी है, जनाब रईसुल अरार चौधरी गुलाम बाद साहब ने इसकी क़यादत की, सरदार अब्दुल कयूम साहब ने इसकी क़यादत की, सरदार अतीक साहब ने इसकी क़यादत की। बेशुमार लोग एक दिल में ख्वाहिश लिए हुए दुनिया से चले गए, उनकी ये हसरत पूरी नहीं हो सकी, लेकिन ये खूबसूरत नाम, ये खूबसूरत सदारत जलाल कौम के हिस्से में आई और इसके मुस्तहिक ठहरे जनाब मिर्जा मोहम्मद शफीक जलाल साहब। यकीन जानिए, आप अगर तारीख पढ़े देखे, इतना बड़ा मकाम आपको मिला है, आप सोच भी नहीं सकते। पूरे आजाद कश्मीर में आज जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसके हिस्से में आई है?
जराल कबीले के हिस्से में आई है। और जराल कबीला पता रहे, नाराज रहे। मैं समझता हूँ कि जो हमारे दोस्त अभी भी आगे पीछे हैं वो एक छतरी के नीचे आ जाए, वरना वो कल पछताएंगे। वो इस तरह पछताएंगे, अपने जमीर को जब जोड़ेंगे तो वो कहेंगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने शफीक जराल साहब का साथ नहीं दिया। हमारे कबीले में ये सदारत आई, हमने हमें उनका साथ नहीं दिया। वो कभी भी अपने आप को अपने सुकून महसूस नहीं कर सकेंगे, पूरी जिंदगी सुकून महसूस नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी भी जो दोस्त हमारे सोच रहे हैं इस बारे में, वो एक छतरी के नीचे आ जाए। उनने दूसरी जमात में जाके देख लिया, दीगर बेशुमार उन्हें अपने मसाइल भी देख लिए। मसाइल पूरे उन्हें इस पूरी जिंदगी में शायद हो या ना हो, लेकिन ये जो सोच है, इस सोच को अपने दिल में लाए तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन होगा। यहाँ लोगों ने कहा कि साबिक काउंसलर मोहम्मद फाजल जराल साहब, मैं समझता हूँ कि साबिक नहीं है, इसलिए उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए, इसलिए आज भी हमारे काउंसलर ही है। और उन्होंने बात की कि उनके वालिद साहब चेयरमैन फैयाज मोहम्मद साहब, मेरे दादा मेजर कुदरतुल्लाह खान और दीगर हमारे बरादरी के जितने ज़मात हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम इकट्ठे होके फैसले करें, इकट्ठे होके चलें। मैं समझता हूँ कि आज उनकी रूह को तस्कीन मिल रही होगी, उनकी रूह को लज़्ज़त आ रही होगी। आप कबीले में वापस आए, अपने कबीले में वापस आए, आप अपने घर में वापस आए, कहीं बाहर नहीं थे। आज यकीन जानिए कि हम अपनी छातियां चौड़ी करके चलेंगे। हमारे भाई, हमारे बाजू और मजबूत हुए हैं। और सबसे पहले अब्दुल रहमान साहब बैठे हुए कडाला से तशरीफ लाए हैं यहाँ, जिन्होंने इनका सुकून तबाह किया था। जितने मुहाजिरीन हैं, इनका सुकून तबाह किया था। मैं समझता हूँ आज बंगाली की मीटिंग ने इनकी नींदें खत्म कर दी है। अल्लाह के फजल करम से आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ये सदारत जो हमारे हिस्से आई है, इंशाअल्लाह बाफज़ल ताला भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होगी। और हम और आप आज के बाद दिन रात एक कर देंगे और अल्लाह के फजल करम से ये दोबारा हम सीट हासिल करेंगे। जो खोया हुआ मुकाम है वो हम दोबारा हासिल करेंगे। वक्त की चूंकि कमी है, मैं एक बार फिर उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला और अपने आप को पेश किया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाल्लाह इंतहाई जलसा जाती होंगे, वहाँ पे खुल के बातें करने का मौका भी दिया जाएगा। आज ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके हवाले से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर फान सियाली साहब से कि वो शुक्रिया अदा करें ऑनरी कैप्टन फाजल साहब की जो टीम है उसका। जनाब डॉक्टर फान साहब। आज मेरे लिए, पूरे हलके के लिए और सियासी विजन रखने वाले तमाम लोगों के लिए मैं सबसे पहले मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम मेरे बुजुर्गों के भी साथी जनाब ऑनरी कैप्टन मिर्ज़ा मोहम्मद फाजल जराल साहब को, अपने इंतहाई मेहरबान दोस्त ओवरसीज़ रहनुमा मिर्ज़ा मोहम्मद सलीम जराल साहब को, और कोई शक वाली बात नहीं है, बड़ी नफीस खूबसूरत तबीयत के मालिक हाजी जफ़र साहब मदर साहब, और इसी तरह डॉक्टर कासम साहब, और ऐसे
नाम है, जिन नामों की बरकत से हम ये गुलदस्ता जो है ये सजाने में कामयाब हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरी तरफ बाएं तरफ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। यकीनन ये हमारी उम्र के लिहाज से इंतहाई बड़े बुजुर्गों में हैं। और साथ बाएं तरफ एक दरवेश बैठे हुए हैं, साईं अजीमुल्लाह साहब। इनकी वो मोहब्बत थी कि जब भी मिलते थे बस यही बात होती थी कि हमने एक दूसरे से गले मिलना है। तो मैं आज समझता हूँ ये उन बुजुर्गों की दुआएं, अभी तो 9:30 का टाइम है, ये 1:30 बजे तक इस सब्जाजार में, इस गांव कोठी के सब्जाजार में, और इसी तरह बरमले की उस 4 दीवारी में, और इसी तरह कभी गुजरात और कभी किसी जगह, तमाम लोगों की मोहब्बतों ने ये काम किया है कि आज हम सारे आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हैं। ये मैं एक बात आपके गोश गुजार कर दूं, यकीनन ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल में ये आधे पौने घंटे में ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने इसे मीटिंग का रंग दिया है। आज यहाँ हमें सियासी खुशी हो रही है और हमारी बंगाली की फिजा सोगवार है कि हमारे कई बुजुर्ग, हमारी कई माएँ, हमारे रिश्ते में लगती हुई हमारे लोग जो हैं वो इन चंद दिनों में हमसे जुदा हुए हैं, लेकिन उनके लिए आपकी मुश्तरका फातिहा खानी जो है, यकीनन इतना बड़ा इज्तिमा फातिहा खानी में शामिल हो तो दराजात की बड़ी बुलंदी होती है। तो उनके लिए भी ये अल्लाह ने एक मौका फराहम किया, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं। एक बात मैं और आपके गोशो गुजार करूं, लोग समझते होंगे मैं खुले पंडाल में बड़ी वाज़ेह आवाज के साथ ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज की दावत जो है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जितनी भी दावत है वो सिर्फ अहले खाना की तरफ से, हमारी कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तहसील बरनाला या कोई यूथ जो हमारी विंग है उसकी तरफ से कोई किसी को किसी किस्म की दावत नहीं थी, बल्कि कप्तान साहब, सलीम साहब और मेरे जितने ये पीछे बैठे हुए सारे बड़े बुजुर्ग भी होंगे, मेरी भी उम्र 60-61 साल है, बुजुर्गी में शामिल हूँ। यकीन करें आपको हाथ डालने के लिए लोग पुटैया वाले भी हाजिर थे, किला छप्पड़ वाले भी थे। ठीक है, मैं किस किस का नाम लूंगा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कलाड यूनिकोर्सल मलोट से लेकर राना टाउ तक की तमाम यूनिकोर्सल के लोग आपके रास्तों में फूल बिछाने के लिए हाजिर थे, लेकिन इजाजत नहीं थी ताकि ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वरना यहाँ पर आपको यकीनन हमारी तहसील बरनाला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर जुबैर जारा साहब भी आपको नजर आते हैं। यहाँ पर जो है जी मिर्जा मोहम्मद असलम साहब साबिक चेयरमैन ज़कात हमारा, वो भी यहाँ पे आपको नजर आते हैं। आपको कप्तान साहब आपके पुराने सारे साथी जो हैं, इसी तरह सलीम साहब, इसमें कोई शक नहीं, आपकी तमाम कोशिशें, परवेज साहब को मैं पूछने कहूँगा, मेरे भाई हैं, लेकिन जिस नाम से इन्हें प्यार से लोग कहते हैं, आपकी वो सारी कोशिशों में सिर्फ पाकिस्तान, आप यहाँ पर नहीं, आपके साथ बैरून मुल्क से भी लोग मुशावरत में शामिल थे, और मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने फ्रांस में बैठ के, यूके में बैठ के, बैरून मुल्क बैठ के आपकी इन कोशिशों को, आपके इन फैसलों को तायद किया। क्यों जी सलीम साहब, यही बात है, हकीकत है। उन्होंने सेकंड किया, आपकी कोशिशों को उन्होंने तस्लीम किया कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर मैं उनका यहाँ पे जिक्र ना करूं तो ये भी एक थोड़ी सी ज्यादती हो। तो आप यकीन करें, आज मैं ये कहने पर फख्र महसूस करता हूं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिल्कुल 1932 वाली आपने बात की, और जितनी जची तुली कप्तान साहब आपने आज वर्ड यूज किए हैं, मैंने भी अपनी तारीख में, अपनी उम्र में इस तरह की गुफ्तगू को साथ साथ जोड़ते हुए नहीं सुना। आज पता चला आपकी निस्बत का, लेकिन बात सिर्फ ये है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसी तरह मौजूद, हल्के में हम नामुकम्मल थे, आज आपने हमें मुकम्मल कर दिया। यकीन करें
हम बुजुर्ग भी नामुकम्मल थे, हम बुजुर्ग बैठते थे वो आपको याद किया करते थे। यूथ नजर तो आ रही है, लेकिन आज जुबैर झारा की क़ियादत में, उस्मान खालिद की क़ियादत में और जितने की मैं ना नहीं ले सकता, आपने अपनी इस तकरीब को करके आज आपने हमारी यूथ को मुकम्मल कर दिया। आज जहां हमारी जमात मुकम्मल हो रही है बिला तफरीक बरादरी के, जहां हमारे बुजुर्ग मुकम्मल हो रहे हैं, जहां हमारा काफिला मुकम्मल हो रहा है, वहां मैं आलिया पंगाली का नाम अगर न लूं कि आपने इस कारवां में शामिल होकर हमारी यूथ को भी मुकम्मल कर दिया है। अब हमारी रैली की सूरत वो नजर नहीं आएगी, अब दरो दीवारों पे लिखा जाएगा, अब सड़कें देखेंगी, आसमान निजारे करेगा, दिन होगी या रात होगी, अब एक ही आवाज होगी कि मिर्जा शफीक जो है इलेक्शन को विन करेगा। आज हमने ये इनकी मोहब्बत है, वरना सच्ची बात है मेरी तरफ से आज पाबंदी थी। आप सुने देख रहे होंगे किसी नौजवान नहीं, लेकिन बुजुर्ग हैं, हम इनकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। आज हमने तमाम नारों पे पाबंदी रखी हुई है, ठीक है। तो चले, बीच बुजुर्गों की ये मोहब्बत है। दो बातें मैं और करता जाऊं। मेरे वो तमाम आज जम्मू व कश्मीर आज अब चूंकि शामिल हो चुके हैं आप, तो मेरे तमाम आज जम्मू व कश्मीर मुस्लिम लोग जो इस हल्के में मौजूद होने के बावजूद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सके, मैं अपनी तरफ से उनकी हाजिरी लगवा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से तहसील बरनाले की सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तंजीम की हाजिरी लगवाना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से आज जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तमाम अराकीन मजलिस आमला की हाजिरी लगवाना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से आज जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तमाम यूथ विंग हल्का LF5 की हाजिरी लगवाना चाहता हूं, ताकि मेरा कोई बुजुर्ग नाराज ना हो, मेरा कोई दोस्त नाराज ना हो जाए, मेरा कोई प्यार करने वाला ये ना समझे कि मैं शामिल नहीं हो सका। आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं और यकीनन डॉक्टर अपना कासिम साहब ने सच कहा था। हमारी इलेक्शन कैंपेन में कडाले से आए हुए कोल साहब और उनके जितने अजीज यहाँ हैं, एक हमारी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जान डाली। आज आपने उसको काफिले को पकड़ के उस तक चाहते हैं। वक्त कम है। सलीम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, जलसे होते जाएंगे। जफर साहब ने ठीक कहा था। अब इम्तहान शुरू हो चुका है, और इम्तहान ये है कि जो लोग हमसे नाराज हैं हमने उन्हें भी लेकर आना है। हमारा उन्हें कोई चैलेंज नहीं है, ना 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 भाई, हम तो वोट मांगने के लिए आए हैं। हमारे हाथ इस तरह नहीं है, हम तो इस तरह हाथ लेकर चल रहे हैं। हर दरवाजा खटकाएंगे, गली में जाएंगे, हर कूचे में जाएंगे। चीज जारी है, बेहतरी की तवक्को है, अच्छाई की तवक्को है, और इंशाअल्लाह जब आपका बड़ा जलसा होगा परवेज साहब, जब आपका बड़ा जलसा होगा, ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। अल्लाह इस जज्बे को कायम रखे। नौजवानों, इस जज्बे को देखो, ये वो जज्बा है जिसने आपको मजबूत करना है, जिसने आपको आगे बढ़ाना है। इस किस्म के बुजुर्ग हमारे पास मौजूद हो तो इलेक्शन आज हम जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। आखिरी पैगाम के साथ, आखिरी पैगाम के साथ, आप जिस जगह हुक्म करेंगे, कप्तान साहब, जफर साहब, मदर साहब, आफ्ताब कमर साहब, सीम साहब, डॉक्टर साहब, जिस जगह आप हुक्म करेंगे हम रात को भी हाजिर हैं, हम दिन को भी हाजिर रहेंगे। जी हाँ, हमने लोगों को बनाना है, लेकर आगे चलना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैना अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे काफिले में अगर इतना खूबसूरत इजाफा हो, ऑनरी कैप्टन जनाब रिटायर्ड फादर साहब जैसे लोग
हाजी जफर साहब जैसे लोग, सलीम साहब जैसे लोग, मजहर साहब जैसे लोग, सज्जाद साहब जैसे मेहनत करने वाले लोग, उनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि भरपूर क्लैपिंग करें। अब मैं शुक्रिया अदा करने के लिए मर्कजी सदर आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मेरे और आपके कायद, हम सब का फख्र, हमारी पहचान, मेरी मुराद मिर्जा शफीक जलाल साहब हैं, वो शुक्रिया अदा करें जनाब मिर्जा शफीक जलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के मेज़बानान मोहतरम मेरे बुजुर्ग ऑनरी रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद फाजिल साहब, मेरे अजीज़ जनाब सलीम साहब, मेरे भाई ज़फ़र साहब और मज़हर साहब, और परवेज़ जराल उर्फ परवेज़ पंगाली, डॉक्टर कासिम साहब, और स्टेज अब्दुर्रहमान हमारे कटारा से आए हैं, जवेद सादिक साहब बिम्बर से भी आए हैं, इनका नानपुर से तल्लक है, और जितने स्टेज पर आगे पीछे बैठे हुए हैं, जुमला बाप पंडाल में बैठे हुए बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों और मुअज़्ज़ज़ अरकान प्रेस, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह यहाँ ज़िक्र हुआ है कि हमारे इस गांव में कल भी और परसों भी और आज भी जिस वफ़ात हो गई, जिसकी वजह से हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मुख्तसर कर दिया। बल्कि जब रात से ये सोशल मीडिया पर पोस्टें चली तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ हल्का बरनाला के बिम्बर से, समानी से, मीरपुर से बहुत सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, और मैंने उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक है और ये भी बिल्कुल मदूद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इसलिए जब जलसा होगा पंगाली में, क्योंकि पंगाली का सियासत में भी और मुख्तलिफ हवाला जात से एक बड़ा नाम है, जब पंगाली का जिक्र आता है तो बाहर से लोग जो है वो फौरी तौर पर रब्ता करते हैं कि, और फिर जिन शख्सियात के यहाँ किए गए हैं उन शख्सियात को, इनके बुज़ुर्गों को भी बहुत दुनिया जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में जानती है। तो इसलिए इन वफ़ात की वजह से हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मुख्तसर किया, और हमने किसी को भी जो है ये नहीं कहा कि, इसलिए जो पंगाली वालों ने जिस किसी को कहा वो आया, तो इसलिए उन सब जरूरत है कि जो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके, जो आपका इस्तकबाल, जो आपको खुश आमदीद नहीं कर सके, तो मैं इसलिए करते हैं कि जब पंगाली में आइना अनकरीब एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, उस जलसे में इंशाअल्लाह ताला उन तमाम लोगों के ख्वाहिशात को हम पूरा करेंगे। मैं आज सबसे पहले तो जनाब मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग मरहूम साहब, मैं और वो मैं मेंबर ज़िला कौंसिल था, मैं नौजवान था और वो चेयरमैन थे यूनियन कौंसिल बटाला के, वो बुज़ुर्ग थे, और उनकी मुशावरत से मैंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। मैं अपने अजीज़ सलीम का और हाजी ज़फ़र साहब, मज़हर साहब, परवेज़ साहब, डॉक्टर कासिम साहब, अपना मुश्ताक और फ़क्का साहब, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये आपकी बड़ी लंबी फ़हरिस्त है जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। मैं उन सब का बैसीते उम्मीदवार इस हल्का, बैसीते सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनकी शमूलियत पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारी बुनियादी सियासी जमात थी, जिस तरह यहाँ जिक्र हुआ
کہ اس جماعت کی بنیاد جو ہے یہ سری نگر میں پتھر مسجد ہے. اس پتھر مسجد میں 14 اور 15 16 اکتوبر کو 3 دن میٹنگ ہونے کے بعد ہماری اس وقت کی قیادت نے مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی اور اس مسلم کانفرنس کی صدارت آج آپ کے پاس ہے. اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں یہ پنگالی جو گاؤں ہے، میں نے جب بالکل نوجوان تھا ابھی کالج سے فارغ ہو کر میں نے وکالت کا آغاز کیا تو مرحوم مرزا راج میاں صاحب نے یہ پہلوان صاحب کو وہاں بلایا اور مشاورت کر کے مجھے ممبر ضلع کونسل کے لیے نامزد کر دیا. اس وقت یہ پورا حلقہ جو ہے وہ ضلع کونسل کا انتخاب ہوتا تھا. 1979 میں بہت سارے جو لوگ اس وقت جوان تھے آج بوڑھے ہیں، جو بچے تھے آج جوان ہیں. تو 1979 میں جو ریکارڈ ووٹ آپ کی محبتوں اور شفقتوں سے میں نے پورے آزاد کشمیر میں ضلع کونسل کے الیکشن سے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور اس حلقہ سے بھی سب سے زیادہ. جو دوسرے نمبر پہ جو فضل علی صاحب مرحوم آئے، میرے 5200 ووٹ تھے اور ان کے 2500 ووٹ تھے جو دوسرا نمبر بنے. اتنا فرق تھا آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بنیاد جو سیاسی بنیاد ہے یہ پنگالی سے، اس کا اس وقت آپ نے بڑی مضبوطی کے ساتھ آغاز کیا. پھر میں نے اسمبلی کے الیکشن جتنے لڑے اس میں بھی پنگالی کا انتہائی پورے حلقے میں، بعض یونین کونسلوں میں اتنے ووٹ نہیں لے سکا جتنے میں صرف کوٹ جامبل گاؤں اور پنگالی گاؤں سے جتنے ووٹ لے سکا. اس پر بھی پنگالی کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان تمام ساتھیوں کا جو بڑے مشکل حالات میں اس پورے حلقہ میں استقامت کے ساتھ مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ رہے، یہ دیکھتے ہوئے بھی اقتدار جو ہے وہ مسلم کانفرنس کو نہیں مل رہا. تو استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے ان سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مضبوطی کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے رہنے پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کی استقامت کی وجہ سے، ان کی مضبوطی کی وجہ سے میں نے مسلم کانفرنس کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کیا. میں مسلم کانفرنس ضلع ممبر کا صدر رہا، میں مسلم کانفرنس کا مرکزی چیف آرگنائزر رہا، میں مسلم کانفرنس کا سینئر نائب صدر رہا اور میں مسلم کانفرنس کا آج صدر ہوں. اور انتخابی سیاست میں ضلع کونسل سے لے کر 2 ہی انتخاب ہے، ہماری بلدیاتی انتخاب اور اسمبلی کے انتخاب. ان دونوں انتخاب میں ممبر ضلع کونسل بھی رہا اور پھر ممبر اسمبلی بھی رہا. یہ بہت کم لوگوں کے پاس اس قسم کا ریکارڈ ہے. اگر کوئی ممبر اسمبلی رہا ہے تو وہ ممبر ضلع کونسل نہیں رہا، اگر کوئی ممبر ضلع کونسل رہا ہے تو وہ ممبر اسمبلی نہیں رہا، اگر کوئی مسلم کانفرنس ضلع ممبر کا صدر رہا ہے وہ مرکزی صدر نہیں رہا. لیکن جتنے یہ عہدے مجھے ملے ہیں اس کی آپ کی دعائیں، آپ کی جو ہے محنتیں، آپ کی محبت جو ہے اس میں شامل ہے. اس پر بھی میں جملہ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جس طرح ذکر ہوا ہے کہ گزشتہ 2 الیکشن میں کچھ ہمارے مضبوط ساتھی جن میں سیاست میں نمایاں مقام تھا، ہم تھوڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور ان کو نزدیک لانے میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے. کچھ لوگ ملک میں بھی موجود ہیں، کچھ بیرون ملک میں بھی موجود ہیں. جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج اس دنیا میں بھی نہیں. میں ذکر کرتا ہوں اپنے محترم بھائی راجہ لطیف بسی صاحب کا کہ ان کی بھرپور کوششیں تھی. یہ ان کے عزیز و اقارب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس دفعہ بھی وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لوائقین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. کچھ اگر سارے نام لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت وقت لگے گا، لیکن جتنے لوگوں نے بھی، وہ گجرات سے ہوں، وہ جلال پور جسا سے، وہ فرانس سے ہوں، وہ برطانیہ سے ہوں، وہ مڈل ایسٹ سے ہوں، جس جگہ سے بھی ہوں،
उन सब ने जो जो अपना किरदार अदा किया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अनकरीब जो है मैं ये पैगाम देता हूँ कि आप लोगों की मेहनतों और मशक्क़तों से अनकरीब बहुत बड़ी आपको खुशखबरियाँ मिलेगी। इस पर भी मैं जुमला बाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी बात रही कि मैं समझता हूँ कि ये एजाज़ जो है, इस एजाज़ को अल्लाह ताला ना मिटाए और बाकी साथियों से ये एजाज़ नहीं मिटते। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत को कमज़ोर करने के लिए बहुत बड़ी साजिशें ऊपर से भी होती हैं, नीचे से भी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये साजिशें नाकाम करे और अब सब हज़रात को हिम्मत दे। ये देखें, आज मेरे मुखालफीन भी ये कहते हैं कि मिर्ज़ा शफीक जलाल सदारत के ख्वाब देख रहा है। मैं अमली आदमी हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत करके मकाम हासिल करता हूँ। आपको शायद इल्म हो कि शायद मिर्ज़ा शफीक मुस्तकबिल का सदर भी बन सकता है। अगर मैं जमात का सदर बन गया हूँ तो आपको शायद ये भी मालूम हो, क्योंकि आप वाने इक़्तिदार में लोग रहते हैं, उन्हें ये भी इल्म हो कि इसने पता नहीं किधर जाना है। तो इस पर मैं उन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चलो असली नहीं लेकिन ख्वाब में मुझे ये कहते हैं कि वो सदारत के ख्वाब देख रहा है। मैं उन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये बहुत वज़न साफ़ियों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं उनसे गुजारिश कर दूँ कि ये जो हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ बहुत कुंबे कबीले हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ एक फ़र्द ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इंतखाब लड़ने वाले, इंतखाब को देखने वाले तजिया नगार जानते हैं कि बरमला से लेकर अल्लाह ताला के फजल करम से रायपर से लेकर रोई मोड़ से लेकर पंगाली तक जो है, ये जितने बड़े कबीले यहाँ आबाद हैं मुख्तलिफ बरादरियों के, इन सब कबीलों ने जो आज ये मुतफ़िका फ़ैसला किया है, इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसले का नतीजा जो है ये भरपूर ना सिर्फ इस यूनियन कौंसिल में बल्कि पूरे हल्का में जो है इसके असरात पड़ेंगे। और जितनी बड़ी तादाद में क्योंकि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये इन लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर करना था कि ताकि हम पता चल जाए कि हमने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है और आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पहलवान साहब जो मेंबर ज़िला कौंसिल हैं, इनका कितना बड़ा कबीला है, सलीम साहब का कितना बड़ा कबीला है, और हाजी बदर और जफ़र साहब का कितना बड़ा कबीला है, और रज़ाक साहब का मुश्ताक साहब का कितना बड़ा मुख्तलिफ कबीले हैं। यहाँ रास लिहोट है, यहाँ कांगड़ी है, यहाँ पजवाल है, डॉक्टर कासिम साहब है पीछे उन्होंने तकरीर की है। ये अगर इनको गिने तो मैं समझता ये सैकड़ों घराने बनते हैं, और सैकड़ों घरानों ने जो है आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की है। मैं उन सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस पैगाम के साथ कि आज के बाद हमारी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई है, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। आपने जो है ये जिम्मेदारी निभानी है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत में आपके नाम का रोशन करेगा। ये सदर बनना जो मामूली बात नहीं, पता नहीं जिन्होंने मुझे बनाया है उन्होंने क्या देखकर बनाया है। अब सदारत को महफूज और मजबूत करना है। तो मैं इस लिहाज से कप्तान साहब आपका, सलीम साहब आपका, जफ़र साहब और मदर साहब, परवेज साहब, मैं जुमला बाब पंगाली से बाहर से लोग आए हैं, कोई नानपुर का है, कोई जलालपुर जट्टा से है, कोई अगर वो हजरात हैं तो कोट जामल से, ये सब हम एक ही हैं। लेकिन फिर भी मैं आलिया ने पंगाली की जानब से और अपनी जानब से उन सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस रौनक में तशरीफ़ लाए। आज अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर की और भी बहुत जिम्मेदारियाँ इंशाअल्लाह ताला इस सदारत में
जिस तरह सत्ता में कहा है और मैं कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला इस आपकी सदारत में पूरे ज़ात कश्मीर में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला जो है में हुकूमत में शामिल होने में, हुकूमत करने में माजी की तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है भरपूर तरीके से आइंदा हुकूमत, मेरी सियासी सोच है शायद ये, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आइंदा हुकूमत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की होगी। हालात ऐसे बन रहे हैं और इसमें आपका अजीज जो है ये जो जिम्मेदारी इस पर डाली गई है, जिन लोगों ने भी जिम्मेदारी डाली है, मैं अपने एक आपको बात बताकर आपका शुक्रिया अदा कर ख़त्म करता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बात चीज़ें देर होती हैं। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब बीमार थे और आखिरी याम थे और हम क्योंकि रोज़ पिछले टाइम उस अस्पताल में जाते थे, मैं और सरदार अतीक साहब उनके सराहने में खड़े थे और मैं तो मलिक नवाज साहब उनके दाएं तरफ जिधर मुंह वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने जो ही हम गए अंदर खड़े हुए तो उन्होंने कहा जी ये नवाज़ क्या हाल है, वो बुलाते हमें इसी तरह, नवाज़ क्या हाल है, उन्होंने जी ठीक हूँ। सिकंदर का क्या हाल है, उन्होंने जी वो भी ठीक है। मुझे कहा शफीक क्या हाल है आपका, मैं जी ठीक हूँ जनाब। उन्होंने कहा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ख्याल रखना। मतलब मलिक साहब को उन्होंने नहीं कहा, मुझे उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ख्याल रखना। मैं जब सदर बना तो मुझे वो बात याद आई कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था ही है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ख्याल रखना, ये जिम्मेदारी वो मुझ पर आ रही थी कि मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ख्याल रखना। फिर देखें, मैंने ये एक बात आपको भी बता दूं कि मैंने कभी किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं की। जितने ओहदे मुझे दिए गए वो जमाती क़यादत ने दिए, उसमें मुजाहिद अव्वल का भी किरदार था और अतीक साहब का भी किरदार था। मुझे जब मिंबर का सदर बनाया गया तो राया जुल्करनैन साहब यहाँ मौजूद थे, कर्नल अनाम साहब यहाँ, राया मकसूद साहब यहाँ मौजूद थे। तो जब तारिक फारूक साहब ने पूछा कि ज़िला मिंबर का कौन सदर होना चाहिए, तो सरदार शफीक, एक पैगाम ही होता लीडरशिप का। फिर मुझे उन्होंने मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया, मुझे कोई पता नहीं टोटली में होगा। फिर मुझे सीनियर नायब सदर बनाया, मैं सिफारिश किसी और आदमी की कर रहा था। मैंने कहा जी सीनियर नायब सदर इस दफ़ा फलां होना चाहिए, तो उन्होंने जब ऐलान किया तो सीनियर नायब सदर मुझे बनाया। अब सदर के लिए मैं गया, मुझे पता था कि बहुत सारे लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अनकरीब शामिल होने वाले थे उस वक्त भी जब हालात नहीं बने। तो मैंने कहा जी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, तो मैं कहता हूँ कि ये सीनियर नायब सदर, मैं तो रिकॉर्ड होल्डर हो गया हूँ कि मैं सीनियर नायब सदर हूँ। तो मैंने कहा जी कि ये आप किसी को भी ओहदा दे सकते हैं। तो जब 10 दिन के बाद फैसला हुआ तो हमारी कोर कमेटी बैठी, तो सरदार अतीक साहब ने कहा जी कि आज जो बात हमने यहाँ करनी है ये कल मजलिस अमला की इजलास से, ताकि ये बाहर नहीं जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस दफ़ा सदर नहीं बनूँगा और सदर शफीक जलाल होगा। इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन फैसला यही है। और मैं आज सरदार अतीक साहब का आपकी जानब से भी, अपनी जानब से, कोर कमेटी का जो 20 मेंबर थे और उसके बाद मजलिस अमला का, उन सब का शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने मुझे मुतफिका तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर बनाया। वरना बहुत सारे लोग इतराज़ करते थे, बहुत से सीनियर भी लोग थे। तो इसलिए ये आपकी जानब से भी मैं उन सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी जानब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कमी कताई रह गई है, इंशाअल्लाह ताला आपकी मशावरत से वो कमी कताई भी हम पूरे करेंगे और आपकी इस्तो वकार में, सियासत में इजाफा करेंगे। आप दुआ करें, आपकी इस्तो वकार लोग जो है डिस्कस करेंगे आपको। इसलिए मैं जुमला बाब, क्योंकि अब आपने मेहनत करनी है, मुझे थोड़ा टाइम देना है। जहाँ जहाँ मुझे कहेंगी मैं वहाँ, जिस वक्त चाहेंगे मैं वहाँ जाने के भी तैयार हूँ, घर घर जाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा इसलिए भी टाइम मिलना चाहिए कि मुझे हर हल्के की ख्वाहिश है कि सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ खिताब करें हमारे हल्कों में। ये आप देखें, मैं धीरकोट में गया हुआ था, नीलम में गया,
आइंदा मुजफ्फराबाद में जाना है। इसी तरह हम भी यहाँ एक यूथ इंशाअल्लाह ताला उस भी आएगी, फिर भरपूर तरीके से हम सब शामिल होंगे। तो इसलिए आप नौजवानों से लेकर करें, हर आदमी को अगर कोई मेरे साथ कोई ज़ाती नाराज़गी है तो मैं हाज़िर होकर तैयार हूँ कि मैंने आज तक, तो इसलिए आप सब पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पंगाली जनूबी जो इलाका है इसकी सियासत का मरकज़ है। आज मरकज़ ने फैसला किया, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपकी मेहनत और कोशिशों से जो ब्रांचें हैं आगे वो भी भरपूर फैसले करेंगी। बहुत मेहरबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि ये आपकी जमात है, आप ना सिर्फ इसे अपने हल्के में मजबूत करें बल्कि गुजरात में भी मजबूत करें। और ये देखें, ये अल्लाह का करम है कि एक ज़माना था कि हम टिकटें लेने के लिए कतार में खड़े रहते थे और कोई हमें नहीं पूछता था। आज अल्लाह के फजल करम से आपका ये भाई उन टिकटों पर दस्तखत करेगा तो फिर किसी को टिकट मिलेगी। ये एजाज़ आपको मिला है और ये आपकी मेहनतों से मिला, बड़ा मुश्किल मिलता है ये एजाज़। तो मैं समझता हूँ कि अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप जलालपुर में भी काम करें। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से वहाँ भी लोगों को इज्जत का मकाम देगी। जिस जिस जगह आप फैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये आपका भाई भरपूर तरीके से वहाँ नुमाइंदगी करेगा। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो लोग फ्रंट फुट पर आ जाएंगे वो उस हल्के में इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उनको उनकी शनाख्त भी करेगी और सियासत में उनको प्रमोट भी करेगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।